Assalamu alaikum, Khawateen Hozrat, and thank you so much for staying tuned to PTV Sports. You are certainly watching Game On Hai and the post-match analysis. Mujhe kehte hain Shahzad Hasan Khan, and the energy is scintillating, it's exuberating, and it feels like as if Pakistan's going to make it to the knockout stage. Well, I'm not alone over here in all sorts of happiness. Ladies and gentlemen, I'm lucky that I've been joined by Miss Roha Nadeem. Hello, Roha. Assalamu alaikum. Mubarak ho aapko. Walaikum assalam. Assalamu alaikum and welcome to everyone who's joining us right now on Game On Hai. Indeed, as you can guess by Shahzad's pitch, his passion is very evident in his opening speech. और हम लोग भी सब of course यही feel कर रहे हैं because Pakistan has won this match convincingly. हम शायद ना कह सके क्योंकि पूरा मैच हो नहीं सका, लेकिन जितना भी पाकिस्तान ने खेला है, खास तौर पे सेकंड इनिंग्स में फ़खर ज़मान's bravery, his heroics, we will definitely talk about that. But all in all, a good day for Pakistan fans, not a great day for England fans, so all of that is also coming up. Lekin I think before we move towards our in-depth discussion, I think it's important that we take a look at what happened in the match today. Agar hum abhi match summary ki baat kare Pakistan ki aur New Zealand ke match ki, do you want to move ahead to the match summary? Exactly, why not? Let's take a good look at the match summary as well. But Roha, right at the beginning of the game, in the first inning, New Zealand, it looked like as if they're not going to forgive us. But yes, please go on, carry on with the match summary. Well, okay, so Pakistan winning the toss, choosing to bowl first. Of course, forecast conditions thi, and Pakistan went forward with 4 fast bowlers. So एक strategy जो थी वो समझ में आ रही थी. At the beginning, New Zealand were put to bat Conway with a 35, but एक थोड़ी लंबी इनिंग्स वो नहीं खेल पाए, बट उसके बाद दैट पार्टनरशिप बिटवीन रचिन रविंद्र एंड विलियमसन, that is what really changed the game for New Zealand. Williamson putting up another convincing 100. What a World Cup he is having. 108 runs off 94 balls. And Kane Williamson, well, this was long time coming. 95 off 79, 2 sixes and 10 fours from that knock. And then of course Daryl Mitchell, Chapman and Glenn Phillips adding runs and also Santner. तो जितने भी batters इनकी तरफ से आए, इन्होंने runs contribute किए है, which is why New Zealand ended up at 401. On the other hand, अगर आप wickets के column में देखें, a good spell by Mohammad Wasim Jr. But overall, an expensive day for Pakistani bowlers. On the other hand, it was the batters from Pakistan that really started in the most ideal way. Abdullah Shafiq, of course, falling early, lekin Fakhar Zaman and Babar Azam putting together a wonderful partnership of 194 runs. And of course, Fakhar Zaman ending up with 126 not out. Babar also playing a good knock, but it was really Fakhar Zaman who was the star of the show. And then, of course, we saw some rain come in. और थोड़ी disturbances create हुई, intervals हुए, लेकिन in the end the match had to be called off and Pakistan won by 21 runs thanks to the DLS method. Exactly, and now moving on towards the points table, where I believe that every Pakistani today is actually looking at the points table as well. And imagine Pakistan still placed at number 5 with 8 games played. We have won 4, we've lost 1 fortunately, and the points table, we have 8 points, but the positive is the net run rate. We're finally out of the negative, we're still in the positive as well. Can we make it to the top 4? That's the question, and this question will be answered by us playing another game, not just that, but other teams, unfortunately. I do not want to say that, losing to other teams as well. That's how the scenario is. सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ. यहाँ पर जो आज माहौल है, आई थिंक मैं पहले भी आपको एक्सप्रेस कर चुका हूँ कि बड़ा ही बेहतरीन है. Everybody is really happy on the kind of performances Pakistan has put up. सबसे पहले ख़वातीन with a smile, we're very lucky that we've been joined by a former Test cricketer. He happens to be Mr. Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid bhai. Walaikum assalam. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you alongside him. Ladies and gentlemen, we are very lucky. ये चाहते हैं कि तवील इंट्रोडक्शन, लेकिन चूंकि खुशी ज़्यादा तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के पास आना चाहता हूँ. We're very lucky that we have been joined by Mr. Wahab Riaz. Thank you so much, Wahab bhai, for joining us. Wonderful to have you. Alongside him, former skipper for Pakistan. ख़वातीन हज़रात, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ मौजूद है. ये है मिस्टर मोहम्मद हफीज. अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई. वालेकुम अस्सलाम. और आज मजा आएगा, आपकी मेरी एनर्जी मिलेगी आज. सबके साथ हम तो एनर्जी मिलाना चाहते हैं. ऐसी ही भाई है हमारी. ख़वातीन हज़रात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैठा है, ये है मिस्टर राशिद लतीफ़. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. वालेकुम सलाम. राशिद भाई मुबारक हो आपको. आपको भी मुबारक है और सारे लोगों को, जितने लोग पाकिस्तान को फॉलो करते हैं टीम को. और यादगार इनिंग, ये ना भूलने वाली कुछ इनिंग्स होती हैं
नो डाउट कि फास्टेस्ट सेंचुरी नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट कितना छोड़ा वर्ल्ड क्रिकेट पे होता है ना कि हम लोग तारीफ जब इनिंग खेलें और पूरी दुनिया तारीफ कर रही हो, जिस तरह विलियमसन ने बात की है, मतलब फ़खर की वजह से पूरा मैच चेंज हो गया। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग बहुत सारे लोगों ने कहा पहले नहीं खेला, लेकिन होता है कभी कभार प्लेयर के साथ के आउट ऑफ फॉर्म होता है, और फ़खर जिस तरह से आया है, और 2022 में इतने मार्च में पावर प्ले में आखिरी छक्का मारा था, पता है ना आपको ये कि क्या चेंज हुआ कि अब छक्के मारना शुरू हो गया। ये बहुत मुम्मा बना हुआ है, इसको आगे हम खोजेंगे। अच्छा, पावर प्ले की आपने बात की तो एक दफा मेरा ख्याल है क्लैपिंग जरूर बनती है। आपने पहले ओवर की प्रेडिक्शन की थी आज कि 5 से कम रन बनेंगे, और आज के बाद आपने आपकी और बीके की प्रेडिक्शन थी लेस देन 5 रन्स इन द फर्स्ट ओवर। आई थिंक इट वाज जस्ट द 1 रन। 5 रन हमने कम करवा दिए, वरना तो 4 तो 10 होते। But what a prediction that was. हफीज, coming towards you, जिस तरह पाकिस्तान ने बॉलिंग की, ऑफ कोर्स हम उसके बारे में भी बात करेंगे, काफ़ी मिस्टेक्स हुई, बट ओवरऑल द डिसीजन टू बोल फर्स्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड देन getting them to score around 400 odd on the scoreboard, क्या लगता है गलती कहाँ पे मेजर हुई, और उसके बारे में भी बात करें, और ऑफ कोर्स फ़खर के इनिंग्स के बारे में भी वो तो करेंगे, लेकिन आज फ़खर पे फ़खर करने का दिन है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको उस पर खुश होना चाहिए। क्या ही शानदार इनिंग्स, सब लोग याद करेंगे और हम सब लोग तालियां मारते हैं उसके लिए, ये क्लैपिंग उसके लिए बनती है। क्योंकि देखें इनिंग्सें बहुत सी खेलते हैं आप ज़िंदगी के अंदर, वो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत मैच्योर इनिंग्स, अगर आप उसके फिगर्स देखें तो उसके 81 बॉल्स पे 126 रन है, जिसमें उसने 19 गेंदों पे 98 रन किए, और बाकी जो है उसने जो लिए हैं, आप समझ लें कि तकरीबन कोई 60 बॉल लिए हैं उसने, 63 बॉल्स जो उसने लिए हैं, उसमें उसने टोटल जो है 28 रन किए। सो दैट शोज़ कि कितनी मैच्योरिटी से वो खेला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबर उसके साथ खेला, या बाबर ने उसको साथ जो खिलाया, दैट इज़ एन अदर ग्रेट एग्जाम्पल। और ये हमने अपनी पहली इनिंग्स में देखी थी जब रविंद्रा को केन विलियमसन खिला रहे थे। सो बाबर ने उसको जो साथ दिया, लेकिन फ़खर ने जो आज खेली है, जिस तरह जिस कमांड से 11 छक्के मारना और एक भी मिस हिट ना हुए और सारे जाए स्टैंडों में, तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से उसने खेला है, उसने पाकिस्तान को दोबारा से इस वर्ल्ड कप में होप दिया है। एंड यू नेवर नो कि पाकिस्तान इंग्लैंड को अब हरा के जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रहा है। फ़खर ज़मान पे ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान को एहमान में ज़रा जाना चाहता हूँ टू बाजिद खान। बाजिद भाई, सबसे पहले तो मैं एक तस्करा करना चाहता हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। मुझे लगता है कि शायद आपने ये बात की थी कि अगर फ़खर की फॉर्म नहीं लग रही तो 2-3 गेम्स वो मिस आउट करे, अपना मेंटल ब्लॉकेड हटाए और उसके बाद वापस आए। अब जब हम वापस आने की बात करते हैं, हम एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्कों की बात करेंगे, फ़खर ज़मान का नाम उसमें आएगा। हम किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज की बात करेंगे तो फ़खर ज़मान का नाम आएगा। व्हाट वाज दैट क्लैरिटी दैट ही नीडेड, और अब आपको लगता है कुछ स्टांस तब्दील किया है, या इट वाज जस्ट अ मेंटल ब्लॉकेड व्हिच ही गॉट रिड ऑफ? नहीं, कोई टेक्निकल तो कोई इशू उसने चेंज नहीं किया। शायद वो जो प्रेशर रिलीज़ हुआ है ऑफ नॉट परफॉर्मिंग फॉर सो मैनी गेम्स, और उससे वो दूर गया। उसने एक बात की है कि मैं 2-2 घंटे प्रैक्टिस करता रहा हूँ, मैं स्पिनर्स की प्रैक्टिस करता रहा हूँ, फील्डिंग कोच के साथ मैंने अनथक प्रैक्टिस की है। तो वो जो प्रैक्टिस की है उससे शायद इसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, इसकी जो बल्ले पे बॉल लगना शुरू हुआ है उससे मेंटली ये वापस आया है। क्योंकि फ़खर ज़मान का आपको याद होगा, एक अफगानिस्तान के मैच में हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि कभी बॉल इसके ऐसे अंदर आके बीच में से नहीं गुजरता, वो भी गुजरना शुरू हो गया था कि इतनी बुरी फॉर्म लग गई थी। बट वो ये कह रहा है, और मैं भी शायद उस पर एग्री कर रहा हूँ, कि जो उसको ब्रेक मिली उसने ब्रेक में बैठ के रिलैक्स नहीं किया, उसने जाके नेट में 2-2 घंटे बैटिंग की है, प्रैक्टिस की है, तो शायद वो मेंटल स्टेट उसका वापस आ गया। और फिर जब वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलता है, न्यूजीलैंड इसकी फेवरेट टीम है, न्यूजीलैंड चाहे ये बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा तो उनको ये बहुत मारता है। जैसे अब सारी दुनिया, मेरी तारीफ़ करने से कुछ नहीं होगा, सारी दुनिया अब तारीफ़ कर रही है, सब कह रहे हैं कि फ़खर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। मेरा पॉइंट यह है कि जो पाकिस्तान वे है, शायद पाकिस्तान वे ये है कि जब पाकिस्तान को बिल्कुल ही राइट ऑफ कर देते हैं ना, तब वो वापस आते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि जैसे आप आखिरी सेगमेंट में हमें जाने नहीं देते ना, बार बार सवाल करी जाते हैं, वैसे पाकिस्तान हमें जाने नहीं देता। हम कहते हैं कि जी अब 400 हो गया, अब चांस नहीं है, अब क्वालिफिकेशन का चांस नहीं, लेकिन वो खींच के ले आते हैं। और अब मेरे ख्याल मेरे अलावा
मुझे तो ऑलमोस्ट यकीन हो गया, लेकिन सारे पाकिस्तान को यकीन हो गया कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहा बॉबी है। बॉल जैसे भी होगा, अब इस इनिंग्स के बाद सारे पाकिस्तान को यकीन हो गया है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहा है। चाहे श्रीलंका से न्यूजीलैंड से मैच है, लेकिन सारे पाकिस्तान को इस वक्त अगर आप पोल करें ना तो 99.9% वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई होगा। Well, Fakhar Zaman made quite a few, entries into the record books today. अगर हमने आज उनके most sixes in an innings की भी बात की है, most centuries against an opposition in 1 year. Let's take a look at that stat as well. Quite a lot to discuss and unpack from that one Fakhar Zaman innings today. But of course इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है और एक कॉन्टेक्स्ट भी है कि वो कितनी देर एक रफ पैच से गुजर रहे थे. वी सॉ इट इन द एशिया कप. इवन बिफोर दैट वी स्टार्टेड सीइंग दोज ग्लिम्पसेस. बट एज बीके सेड कि व्हेन इट्स न्यूजीलैंड, यू बेटर बिलीव फखर जमान विल ब्रिंग हिज ए गेम. 4 सेंचुरीज हैं अभी तक न्यूजीलैंड के खिलाफ फखर की 2023 में. तो यहाँ पे हफीज़, आई वांट टू आस्क यू, कोई स्पेशल ऑपोजिशन होती है जिसके खिलाफ जब आप खेलते हैं और जिनके खिलाफ आपने स्कोर किया होता है, तो आपको कोई एक एडेड इंस्पिरेशन ऑलरेडी मिलती है कि यार इनके खिलाफ आई नो कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं एंड आई विल ट्राई टू गो बैक टू दैट प्लेस मेंटली एंड ब्रिंग इन माय बेस्ट गेम? नहीं, बहुत ज़्यादा ये वर्क करती है क्योंकि आपकी कुछ जो दिमाग के अंदर जो पॉजिटिव सेल्स बनते हैं वो इस सोच के साथ भी बनते हैं कि इस ऑपोजिशन के खिलाफ मैंने लास्ट मैच खेला था तो मैंने स्कोर किया, मैंने लास्ट मैच में इनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग की. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करती हैं. मुझे लगता है कि फ़खर की ये फेवरेट टीम इसलिए है कि ये रिलाई करते हैं ज़्यादा अपनी पेस अटैक के ऊपर, और फ़खर को पेस चाहिए बैट के ऊपर. जब उसको पेस मिलती है और जब उसके शॉट लगना शुरू होते हैं तो फिर कोई जैसे मर्जी करे. क्योंकि जो इनकी इनिंग्स आज की है वो इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगी क्योंकि इसमें बीच में स्पिनर्स भी आए और स्पिनर्स को उन्होंने फीट यूज़ करके, बॉल दूर भी थे तब भी वहाँ पे पहुँचे. कुछ चीज़ों पे उन्होंने वहाँ पहुँच के शॉट मारे, कुछ बॉल को आने दिया. तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बात की कि न्यूजीलैंड उनकी फेवरेट टीम है, वो इसमें कोई शक ही नहीं है कि अगर एक साल में आप एक ही अपोजिशन के खिलाफ 400 करते हैं तो आप सोचिए वो कितने डरे होंगे. और उनके डर की आप ये हालत देखिए कि मैं समझता हूँ कि केन विलियमसन एक एक्सपीरियंस कैप्टन है. उन्होंने अपने बेस्ट बॉलर को, सऊदी को, जो कि 5 ओवर में सिर्फ 27 रन दे के 1 आउट करके बैठे थे, जबकि फ़खर का ये कहना है कि जब इनको इक्वेशन मिली तो इन्होंने अपना गेयर शिफ्ट किया, अपने आप को इन्होंने फिर उस डिफरेंट जोन में खेलना शुरू कर दिया. पहले 15 ओवर तक इन्होंने 6, 6.5, 6.25 की एवरेज से खेला, लेकिन अगले 5-6 ओवरों में इन्होंने एकदम से मैच को दूर कर दिया. तो मैं ये हैरान हो रहा था कि केन विलियमसन का जो डिसीजन था कि सऊदी को फर्दर अगर वो 2 ओवर करवा देते, नोइंग द फैक्ट कि अगर बारिश आनी है, अगर हमें पता लग गया, हमारे डग आउट को पता लग गया कि बारिश आने में कुछ टाइम है तो इसको कवर अप करो या अहेड ऑफ द गेम जाओ, तो उनको क्यों नहीं पता लगा? और अपना जो बेस्ट बॉलर है, जो सबसे अच्छा बॉलर है, अगर उसे 2 ओवर करवा भी देते तो क्या फर्क पड़ता? हो सकता है वो एक आउट कर देता. लेकिन व्हेन थिंग्स वर्क फॉर यू, इट वर्क्स फॉर यू. और फ़खर की आज की इनिंग्स न्यूजीलैंड के खिलाफ तो अच्छी है ही. मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी दुनिया के जो प्लेयर या टीमें वहाँ पे खेल रही हैं सबको डरा के रख दिया. एग्जैक्टली. और जहाँ पे आपने अभी स्ट्राइक रेट के हवाले से बात की, जरा इसके साथ भी मैं राशिद भाई को भी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि राशिद भाई बड़े रेयर ओकेजन्स पे हमने देखा है कि हम अहेड ऑफ द गेम भी होते हैं. आई थिंक टुडे वाज वन ऑफ दोज ओकेजन्स एज वेल. खास तौर पे जब बारिश का पता हो, डग आउट ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हो, आप उसी हिसाब से प्लान करके चल रहे हो, तो जिस तरह से गियर शिफ्ट किया, अगर फेज वाइज हम फ़खर ज़मान की स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करें, आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी पिवटल इन आवर कॉन्वर्सेशन कि वो किस तरह से गेम को चेंज करते चले गए. इन्होंने बाद में कैलकुलेशन की है, जब ये अंदर बैटिंग कर रहे थे उस वक्त ये देखा है बारिश आने वाली है, तो फिर उन्होंने मंगवाया था कि कितने रन बाकी हैं. ये इनका करियर का है स्ट्राइक रेट है, शुरू के 10 ओवर में 82 है. मेन जो है 31 और 40 ओवर के दरमियान और 41 से 50 ओवर के दरमियान जब ये जाते हैं तो ये फ़खर वे है, जिस तरह बात की थी बादिद ने और वहाब ने, ये इनका स्टाइल है. पाकिस्तान में अगर देखा जाए, ये हमने 5 फेज़ दे दिए, हम 3 फेज़ में जाते हैं, तो सबसे अच्छा रिकॉर्ड आज भी, जब ये ड्रॉ पर उस वक्त भी फ़खर ज़मान का था. इनका लास्ट में जो रिकॉर्ड था, जब मतलब कि 190 वही है, तकरीबन 95 प्लस था उनका पेसर्स के ऊपर, जो कि 140 प्लस करते हैं. वो दुनिया में जितने प्लेयर देखेंगे ना, लास्ट ओवर में वो डिक्लाइन हो जाता है, नीचे आ जाता है. लेकिन ये ऐसे प्लेयर हैं, ये जैसे हफीज़ ने कहा कि पेस को लाइक करते हैं. न्यूजीलैंड की खैर आज उनके पास एक बॉलर शॉट था जो फ्लिप से बॉलिंग कराए ना, वो हफीज़ का यही कहने का मकसद है कि आप अपने मेन बॉलर को पहले करा लेते अगर बारिश आ रही है. वहाँ पे शायद
कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है विलियमसन ने, लेकिन आज दोनों की स्पेशली अगर बाबर की भी बैटिंग देखें, इन दोनों की, इन्होंने ये भी कहता है मारना भी है और आउट भी नहीं होना। और यहाँ पे प्रिडिक्शन जो थी बाधित की कि इश्क सोदी काम आएगा, काम आ गया। Wahab, I want to get your opinion. Do you agree with what is being talked about? कि perhaps New Zealand could have been more attacking while Fakhar was there and while he was batting? देखिए विकेट तो फ़खर की चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से फ़खर ने स्टार्ट किया था तो ही वॉज द ओनली डेंजरस मैन, और अगर उसको आउट कर ले तो आई बिलीव कि पाकिस्तान टीम यहाँ तक ना पहुँचती, मोस्ट प्रॉब्लली 5-6 आउट हो गए होते, क्योंकि तेज़ खेलना था। और व्हेन वी टॉक अबाउट फ़खर तो ही इज़ समबडी हु कैन क्रिएट दैट डिफरेंस। अगर ये मैच 50 ओवरों का भी होता तो जब तक फ़खर टीम खड़े हुए थे तो तब तक पाकिस्तान टीम ये मैच जीत रही थी। असल में उनकी लिमिटेशन यहाँ पे आ गई कि जिधर उन्होंने सऊदी ने जब अपना तीसरा ओवर करवाया है उसको उसमें 2 छिक्के पड़े हैं, उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा लेकर आए हैं बारिश से पहले, लेकिन बारिश के बाद जब इक्वेशन ऐसी हो जाए तो फिर कप्तान को चाहिए कि अपने मेन बॉलर को ले आए, क्योंकि मैच लंबा होता तो हो जाए। आई नो ओवर कम हो गए थे या जो भी था, क्योंकि वो एक ओवर सऊदी का 20 रन का गया जी। अगर वो एक ओवर सऊदी ना करता और वहाँ पे बेशक बोल्ट या वो ही करते, सऊदी करते तो सॉरी वो सऊदी करते तो फिर इनको क्या कहते हैं इशू ना होता ज़्यादा, क्योंकि आपको विकेट लेनी थी। अगर एक विकेट लेते, एक विकेट के साथ प्रेशर पड़ता, इस तरह आके हमारी टीम में सिर्फ एक प्लेयर ही और था जो इस तरह की हिटिंग कर सकता था, वो था इफ्तिखार, उसके बावजूद और कोई नहीं था। सो उधर अगर आप एक आधी विकेट ले लेते फ़खर की या बाबर की, तो आप एक तो डकवर्थ ल्यूइस जो मेथड है उसमें आप एक तो उनका रन रेट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता, स्कोर नीचे आ जाता और पाकिस्तान को भी थोड़ी सी परेशानी होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उन्होंने वाकई ट्रिक मिस किया कि एज अ कैप्टन यू नीड टू गेट दैट विकेट, यू हैव टू ब्रॉट योर फास्ट बॉलर्स। बाद में अगर हो जाता तो हो जाता, लेकिन उस सिचुएशन पे क्या डिमांड थी कि आपके मेन बॉलर्स आते। एग्जैक्टली बाजी भाई आपकी जानिब बढ़ता हूँ इसी बात के साथ, और वो ये है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि शायद बारिश के बाद वो एंटिसिपेट कर रहे हो कि यार पिच के ऊपर बिहेवियर चेंज होगा एंड दैट्स द टाइम कि हम अपने प्रीमियम बॉलर का इस्तेमाल करें। दूसरी जाने जब हम बाबर आजम की दूसरे एंड के ऊपर बात करते हैं, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग एंड पीपल माइट नॉट लाइक इट आस्किंग मी कि क्या बाबर वाज प्लेइंग हिज ओन वे। पहली बात आपकी ठीक है, पीपल माइट नॉट लाइक यू, वो तो बात कंफर्म। थैंक यू सो मच कि आप बल्कि बहुत ही सच बोलते हैं माशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर, लेकिन काफी सारे लोग और होंगे चाहने वाले। लेकिन चूंकि मैं ये सवाल आपकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं तो जरूर बताइएगा कि वाज बाबर प्लेइंग his own way or do you think that it was a sensible inning which he built alongside Fakhar Zaman? नहीं, बाबर बिल्कुल ठीक खेल रहा था। जिस तरह से हम जा रहे थे, मेरे को 15-16 ओवर में 120 लगा हुआ था। इस सोडी को आप मैच खिलाते हैं, बहुत हाई रिस्क था क्योंकि वो कोई भी मैच नहीं खेला वो, और वनडे क्रिकेट में मैंने पहले भी मेंशन किया कि वो बांग्लादेश के खिलाफ 6 आउट उसने ज़रूर किए वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से वनडे क्रिकेट में उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सही है। और अगर लेग स्पिनर को आप एकदम ऐसे लेके आते हैं, बहुत हाई रिस्क होता है कि लेग स्पिनर को जब लगना शुरू होती है तो वो रुकता नहीं। आज भी ऐसे ही हुआ। अगर उनको खिलाना ही था, अगर लॉकी फर्गसन आपके पास नहीं है तो डिफरेंस शायद जेमिसन को खिला के थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता, और थोड़ा लंबा बॉलर है, हाइट थोड़ी ज़्यादा, शायद बाउंस ज़्यादा मिलता। ये सारे जितने बॉलर थे एक डायमेंशनल हो गए ना, सऊदी हो गया, बोल्ट हो गया, ये स्विंग बॉलर्स हैं, एक ही तरीके के बॉलर हैं। जो लॉकी फर्गसन खेलता है तो वो डिफरेंट बॉलर, वो तेज़, वो बाउंसर करेगा, वो ज़रा डिफरेंट अटैक में आएगा। जेमिसन का हाइट का ज़रा डिफरेंस आ जाता। फिर जब दोनों स्पिनर, सैटनर पे बहुत डिपेंडेंट है, लेकिन फ़खर जमान जिस तरह आज खेल रहा था, उसको जो बॉल स्पिन अंदर होना उसको तो वैसे ही वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा था। फिर जो आपका स्पेशलिस्ट स्पिनर खेल रहा है वो है सैटनर, उसके बाद ये खेल रहा है सोडी। सोडी मतलब आप कह लें कि ऐसा वो मतलब लाइबिलिटी सा था आपको, क्योंकि आप एक तो आप पे बिल्कुल वैसे ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि इसको कब लेके आए, इसको बिल्कुल एंड में लेके आया, और जब लेके आया तो वो सही उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो जो बॉलिंग है इस मैच में और पिछले मैच में, ये बॉलिंग न्यूजीलैंड की बहुत क्वेश्चन हो रही है। पाकिस्तान मतलब नथिंग टू, मतलब फ़खर की इनिंग्स तो सबके सामने है, मतलब इससे बेहतर इनिंग्स तो आपको कहीं सर्च करोगे तो बड़ी, गूगल पे भी करोगे तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी। बट न्यूजीलैंड को ये सोचना पड़ेगा। हम सुबह भी ये तस्करा कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर खिलाए, उन्होंने स्पिनर खिलाए। पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर खिलाए बिकॉज उनके स्पिनर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। न्यूजीलैंड ने स्पिनर खिलाया जो कि पहले 1 साल से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसको खिलाया, चांस लिया,
जो कि मेरे हिसाब से गलत। जो कि गलत हो गया। और बाजिद भाई ने जैसे फखर जमान के ऊपर उंगली रख के कहा था जी, सोडी की 6 ओवर बाकी है जैसे बाजिद भाई ने सुबह जो फखर जमान पे उंगली रख के कहा था, इनको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा, इस शुरदी पे भी इन्होंने सुबह में ही उंगली रख दी थी। तो मेरा ख्याल है इस मौके पर जरा छोटी सी ब्रेक पे जाना चाहता हूँ। और जब वन डायमेंशनल बॉलिंग की बात हुई है, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी पेसर्स पे भी बात करना यहाँ पे बड़ा ही जरूरी होगा। सुबह में सर जाने से पहले एक नाम मैंने भी लिया था कि आज सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, कोई तालियां बजाना चाहता है तो बजा सकता है। मोहम्मद नसीम जूनियर का मेरे ख्याल है किसी ने 400 का। अच्छा हम करें तो सर वो डिफरेंट हो जाता है, आप लोग करें तो डिफरेंट हो जाता है। मैं अपने लिए खुद बजाता हूं। आप तो जज है ना? नहीं हम कहाँ जज है सर, हम कहाँ जज हो वो सकते से जज है। माफी चाहता हूँ मुर्शिद, हम लोग मैं तब तालियां बजाऊंगा जब ये परफ्यूम आपको मैं मिलेगा। मुर्शिद माफी चाहता हूँ। खवातीन साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते गेम और जी वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की। ये थोड़ी बात हमने पाकिस्तान की बैटिंग पे, पाकिस्तान की बैटिंग को क्या कहें, फ़खर जमान की बैटिंग के ऊपर हमने काफ़ी बात की। ऑफ कोर्स थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन किया, कहाँ कहाँ पे इम्पैक्टफुल रहे वो, कौन से एरियाज़ में, और ख़ास तौर पे कौन से फेजेस में फ़खर जमान जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइक रेट। तो उसके बारे में भी ब्रेक से पहले बात हुई थी। ऑफ कोर्स हाउ बाबर आजम सपोर्टेड Fakhar Zaman in today's partnership, and all in all it was a convincing knock from him or a long time coming। लेकिन दूसरी साइड पे अब आते हैं थोड़े बहुत जो एरियाज आज पाकिस्तान के एक्सपोज हुए हैं when it comes to their bowling। We will take a look at those visuals, those highlights, but for now वहाब थोड़ा सिल्वर लाइनिंग जो आज की बॉलिंग में पाकिस्तान की नज़र आई। जितने भी फास्ट बॉलर्स को आप देख लें आज दे वेंट फॉर रन्स। 8 से नीचे किसी की भी इकॉनमी नहीं थी अपने अपने कोटाज जिन्होंने बॉल किए जो फास्ट बॉलर्स थे। लेकिन वसीम जूनियर ही वाज रिवर्सिंग टुडे, ही वाज यूजिंग हिज वेरिएशंस। लेकिन आज इस तरह की बॉलिंग वसीम ने की है, यू नो 3 विकेट्स, just 60 runs were given off of his 10 overs। सिल्वर लाइनिंग ज़रूर थी। आपने कैसे एंजॉय किया वसीम के स्पेल को? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी डिसअपॉइंटेड पाकिस्तान की बॉलिंग को आज देख के। उसकी वजह यह है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी एक बॉलर का बुरा दिन हो सकता है और मैक्सिमम 2 का हो सकता है, लेकिन हमारे 3 मेन बॉलर जो हैं वो आज 80+ रन्स पे गए हैं। और सबसे दुख वाली बात यह है कि आज सबसे अच्छा रिवर्स हो रहा था बॉल। मेरा ख्याल है जो कंडीशंस थी वो पाकिस्तान बॉलर्स को सबसे ज़्यादा अच्छी सूट करती थी और हमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। वसीम जूनियर बोल्ड वेल एज़ कम्पेयर टू बाकी थी। वो एक जुर्म है इस विकेट पे बॉल करना। विकेट जब स्लो होता है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो शायद थोड़ा सा एक्सपीरियंस या उनको बताया नहीं गया या प्लान सही तरीके से किया नहीं गया। जब विकेट स्लो होती है ना तो ये बैट्समैन है सारे, मैं चाहूँगा कि ये लोग इनका जवाब दो। जब विकेट स्लो होता है और बॉल रिवर्स हो रहा होता है ना तो आपको फाइन लेग ऊपर बुला के लॉन्ग ऑन पीछे ले जाने चाहिए थी स्ट्रेट वे, और आपको चाहिए था कि बॉल आप आगे करें, आगे से कोशिश करें कि बॉल आपको ऑन ड्राइव मारें या लॉन्ग ऑन पे ज़्यादा खेलें। अगर वो आपको 1-2 शॉट क्रॉस खेल भी देते हैं अगले बॉल को मिड विकेट, स्टिल एज अ बॉलर यू हैव अ चांस कि आप उनकी विकेटों में गेंद फिनिश करें या LBW आप आउट करें या आप बोल्ड कर सकते हैं। बट हमारे बॉलर्स ने क्या किया कि अच्छा रिवर्स हो रहा था उसको कैपिटलाइज नहीं किया और उसके बाद वी बोल्ड वेरी शॉर्ट। जो नया बैट्समैन आता रहा हमने उसको शॉर्ट बॉलिंग किया, जो नया बैट्समैन आया हमने उसको शॉर्ट बॉलिंग किया। जब इतना ज़्यादा रिवर्स हो रहा और आप बॉलिंग शॉर्ट करें तो आई थिंक फिर मसला बॉलिंग के अंदर है। सही। मेरा नहीं ख्याल कि वो मसला जो है वो क्या कहते हैं किसी और चीज़ में था। वसीम जो बेहतर बॉलिंग वसीम ने की वो इसलिए की कि वसीम ने ज़्यादातर बॉलिंग शॉर्ट नहीं की। वसीम को जितने शॉट लगे हैं या तो वो कट पे लगे, अगर आपने देखा होगा वो भी थोड़ा सा रूम बना के उन्होंने वेट किया कि थोड़ा सा जब वसीम ऑफ स्टंप से ज़रा बाहर गया, चौथे या 5वीं स्टंप से बॉल रिवर्स करने गया, जब उनका बॉल उतना रिवर्स नहीं हो उनको कट पे या पॉइंट पे चौके लगे हैं, पॉइंट पे और कवर पे चौके लगे। बाकी हमारे जितने बॉलर्स हैं उनको मिड विकेट भी शॉट लगा है, उनको लॉन्ग ऑन भी शॉट लगा, उनको स्केयर लेग भी लगा और बिहाइंड ये क्या कहते हैं स्केयर लेग जो फाइन लेग वाला है उधर भी शॉट लगे। सो बहुत बड़ा डिफरेंस था आज। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स हैजंट बोल्ड वेल एंड मुझे लगता है कि जो उनसे केपेबल जिस चीज़ के वो केपेबल हैं वो आज बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दें मुझे।
देखें ये बहुत क्रिटिकली इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन की सबसे पॉजिटिव चीज़ जो थी वो मोहम्मद वसीम के 10 ओवर थे। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन थी और मैंने मोहम्मद वसीम को वो 3 साल से उनको मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो कोई ना कोई फॉर्मेट में वो साथ हैं और खेल रहे हैं। इससे अच्छा एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स मैंने कभी करते नहीं देखा। तो मेरे नज़दीक ये सबसे अच्छी उनकी बॉलिंग है। आपने बात की सिल्वर एरिया की, मैं आपको ग्रे एरिया की एक बात बताता हूँ। पाकिस्तान के 3 स्पिनर स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं। देखें जब आप जीतते हैं ना तो जीत के तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, लेकिन उसमें कुछ आपकी कमी ऐसी होती है जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है ताकि उसके ऊपर बेहतरी लाई जाए। पाकिस्तान के 3 स्पिनर स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं और हमने तीनों को ना खिला के आज के मैच में उनके कॉन्फिडेंस को टोटल डेंट कर दिया, उनको बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिया। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में आगे तक नहीं जा सकता अगर स्पिनर ना खेले। आपको इनमें से किसी एक या दो को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो इंडियन पिचेस आपको माफ़ नहीं करेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो गलती की है इससे सीखना चाहिए और हमारे तीनों स्पिनर में से किसी एक को ज़रूर इंक्लूड करें इस टीम के अंदर, या 2 नहीं तो कम से कम 1 ज़रूर खेले, क्योंकि उसके बगैर आपकी टीम नहीं बनेगी। आप इन पिचेस के ऊपर ये आज जो हुआ है ये दोबारा 400 पे 400 करते वक्त मुश्किल हो सकती है। तो आपको ज़रूर ये जो ग्रे एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि स्पिनर्स के कॉन्फिडेंस को जो डेंट डाल दिया गया है उसको कैसे रिकवर करना है, दैट इज अ मेजर पार्ट। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे एक और चीज भी ऐड करना चाहता हूँ। पहले जरा एक शॉर्ट एंड स्पीड ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, फिर उसके बाद वापस आके बात करते हैं। जो वहाब भाई ने कहा कि यार शॉर्ट बॉल्स हमने ज्यादा की तो पावर प्ले में हमें विकेट नहीं मिली। हसन अली आते ही शॉर्ट बॉल के ऊपर विकेट लेके देते तो ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान बॉलिंग को अपना मोजो मिल गया है। क्या दैट्स द रीजन कि हम कुछ तवील दौरानिए के लिए शॉर्ट बॉलिंग करते चले गए? गेम ऑन है। जी ऑलराइट, वेलकम बैक। अब मैं जरा वापस मैं राशिद भाई को और बाजिल भाई को भी इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ, सबकी टेक लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सर मैं रचिन रविंद्रा के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी तालियां बॉलिंग पे कंट्रीब्यूटिंग, लेकिन नहीं बॉलिंग पे मैं रचिन रविंद्रा की बैटिंग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारी बॉलिंग बुरी थी जिसकी वजह से वो 108 रन करने में कामयाब हुए। जो हमने शॉर्टर डिलीवरी की भी बात बॉलिंग का क्या है कि ना आज मार्जिन दे सकते हैं आप दोनों टीम को। ठीक है, बहुत मार लगी है बॉलर से दोनों तरफ से। 75 ओवर में 600 रन बने हैं और जिसमें आगे विलियमसन आते साथ सेट है ना, जिसमें ड्राइव मारा, इसका मतलब पिच बहुत ही अच्छी है। रिवर्स अगर पीछे करें तो यूजलेस हो गई। उसको थोड़ा आप फील्ड प्लेसिंग आपकी डिफरेंट हो जाती है, यानी फील्ड प्लेसिंग नहीं होती। कभी कभार आपको फील्डर चेंज करने पड़ते हैं, आप ज़्यादा इधर ऑन साइड पे ले लेते हैं कि इन स्विंग आ रही है। आप दोनों तरफ अगर चौके खा रहे हैं इसका मतलब फील्ड प्लेसिंग और लेंथ का इशू है। इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर लूँ राशिद भाई की बात को कंटिन्यू करते हुए कि पहले 20 ओवरों में हम लोगों को 126 रन थे, 1 आउट था। हमने आखिरी 30 ओवरों में 276 रन दिए जी। और अभी भी आपने रविंद्रा की जितनी बैटिंग देखी है, स्वाय जो 1-2 बॉल उसने आगे से ड्राइव मारे हैं, उसके बाद उसने जितने शॉट खेले सारे शॉट बॉल्स थे। अच्छा वहाँ भाई इसमें सिर्फ एक और बात भी, चूंकि शाहीन की हम बात करते हैं, हारिस की बात करते हैं, पेस के हिसाब से करते हैं ना, और शाहीन की जब हम नई बॉल की बात करते हैं हम कहते हैं जी स्विंग मिलता है इस वजह से। आप मुझे बताएं कि क्या पेस विदाउट स्विंग इम्पैक्टफुल हो सकता है? देखिए जो स्विंग है ना वो तो पेस कम भी हो तो स्विंग हो जाता है अगर आप अच्छी जगह से कर रहे हैं। तो अगर आपका बॉल स्विंग भी हो रहा है ना, स्विंग ज़्यादा होता है बल्कि जब आप थोड़ा स्लो कर रहे होते हैं उसमें बॉल को थोड़ा सा टाइम मिलता है, थोड़ा सा एयर मिलता है तो वो ज़्यादा स्विंग हो जाता है। बात यह है कि देखिए फॉर्म जो लगी हुई थी ना शाहीन की, हम सबसे बड़ा जो डिफरेंस डाल रहे थे ना वो डिफरेंस डाल रहे थे जब शाहीन नए बॉल से आउट करता है जी। शाहीन ने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 या 3 आउट किए नए बॉल से अपने 8 मैचों में जो अभी तक वर्ल्ड कप के हुए नए बॉल से, जो उसकी स्पेशलिटी है। दैट इज़ द बिगेस्ट सेटबैक टू पाकिस्तान टीम। ठीक है, अगर आप उसके साथ आप दूसरे बॉलर्स देखेंगे ना तो उन्होंने टोटल इतने उसने जितने मैच खेले ना तो बहुत कम बॉलरों ने नए बॉल पे आउट किया। ठीक है, लेकिन जो पीरियड आ जाता है ना बाद में वाला, जिधर आपने निकाल दिया था 20 ओवर के बाद, आज मैंने सुबह भी बात की थी कि 20 ओवरों में टीमों का स्कोर 110 से 105 होता है, 30 ओवरों में 200 प्लस हो जाता है। अच्छी टीमें वही करती है। सो हुआ क्या है कि फ़र्क ये आया कि जब उनको नहीं मिला, अब शाहीन जो है वो हमारा मेन बॉलर है, अनडाउटेडली एफर्ट कर रहे हैं, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द बॉलर्स, वो लोग बहुत अच्छी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होता है। लेकिन आज तो जो चीज़ थी जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है रिवर्स स्विंग के लिए, उसमें जब हमने ये चीज़ देखी है ना तो वो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा दुखती है कि ये तो हमारे बॉलर्स तो चाहते हैं कि गेंद थोड़ा सा पुराना हो, हम भी उन्हीं में से थे कि यार बॉल थोड़ा सा पुराना हो और हम अपनी मर्जी से बॉलिंग करें। बिल्कुल।
लेकिन वो आज हमने जो ट्रिक मिस किया ना कि अगर आप केन विलियमसन की बैटिंग निकाल लें, आपने रविंद्रा की दिखाई है, आप उसके बाद उसकी मिचल्स की देख लें या ग्रैंड फिलिप्स की देख लें, चैपमैन की देख लें, तो शॉर्ट बॉल की हमने। It did not look like he came back from a break. लग रहा था कि उसी फॉर्म में खेलते हुए आ रहे हैं। नहीं, हाई क्लास प्लेयर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन आते ही ऐसे परफॉर्म करना, आते ही मतलब पहले बॉल से ही ऐसे लग रहा था कि कोई ब्रेक नहीं आया बीच में। वो इसकी क्वालिटी है, आप जब भी देखेंगे कि बहुत कम ऐसे होता है कि ये लगे कि बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा। मोस्टली इवन बाबर जब खेलते हैं तो मोस्टली ये नहीं लगता कि आउट ऑफ फॉर्म है, आउट हो जाए वो अलग बात है, बट ये भी ऐसे नहीं लगता कि आउट ऑफ फॉर्म है, इनके बल्ले पे बॉल लग रहा होता। आज भी उसी तरह जैसे ही आए बल्ले पे बॉल लग रहा है। ड्राइव, जब इनका ड्राइव चल रहा हो सामने, अगर इनका कवर ड्राइव चल रहा हो तो समझ लें कि फॉर्म में है। इनको मसला बाबर और इनमें ये क्वालिटी है, इनको मसला ये नहीं होता क्योंकि ये बॉल जो इनका इम्पैक्ट है ना बिल्कुल इनकी नज़रों के नीचे है। बाबर का भी जो बल्ले पे जब बॉल लगता है तो बिल्कुल उसके नज़रों के नीचे, इतना लेट ये खेलते हैं तो वो इनका जो रिदम बनता है ना उधर से, बैटिंग रिदम, क्योंकि द फैक्ट के उनका इम्पैक्ट इतना परफेक्ट है तो कभी कभार फुटवर्क का इतना ज़रूरी नहीं होती जब आपकी इम्पैक्ट बिल्कुल आपकी नज़रों के नीचे है। विक्रमजीत याद आ गया। विक्रमजीत तो आउटस्टैंडिंग। लेकिन मुझे जो लगता है, ये मेरी जो सुई फंसी हुई है, आप सलमान अली आगा को नंबर 7 पे खिला रहे हैं और उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं 2 ओवर कराए ना उसने, तो इससे बेहतर है कि आप सलमान अली आगा के नंबर 7 पे जो यूटिलिटी है वो मेरे ख्याल शादाब की भी उतनी यूटिलिटी है विद द बैट। ट्रू। उस दिन राशिद भाई ने बात की कि शायद हमारे जो बॉलर्स हैं वो 4 ओवर अच्छे करते हैं, तो फिर शादाब को नंबर 7 खिला के 4-5 ओवर करवा लें, वो ज्यादा यूटिलाइज करें उस पोजीशन को। प्लस एज अ फील्डर वो बड़े रन्स बचा देते हैं। सलमान चलो नवाज को खिला लें फिर। सलमान अली आगा इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। बैटिंग ऑलराउंडर का नंबर 7 पे मुझे वैल्यू नहीं समझ आती, क्योंकि वो सलमान अली आगा वो इफ्तिखार वाला पावर हिटर नहीं है जी। नंबर 7 पे उसको खिलाना उसके साथ ज्यादती है। ये बैटिंग ऑलराउंडर वो है जो इनिंग्स बिल्ड करता है। उधर अगर आपने किसी को खिलाना है, ओवर निकालने हैं आपने, शादाब फिट नहीं है तो नवाज को खिला लें। बैटिंग नंबर 7 पे उतनी ही उसकी बैटिंग होगी जितनी सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा जो है वो नंबर 5 से नीचे नहीं खेलना चाहिए इस टीम में। ठीक है, हमने चूंकि सलमान अली आगा की भी बात कर ली, पाकिस्तान की भी बात की, हमने न्यूजीलैंड की भी बात कर ली। अब मुझे पता आप ब्रेक पे जाना चाहती हैं, लेकिन हफीज़ भाई और वाब भाई की जाने में बढ़ना चाहता हूँ। ये चूंकि फ़खर को, बाबर को आप लोगों ने खुद अपने साथ खेलते हुए भी देखा है, तो एनीथिंग फॉर देम, क्योंकि हम यहाँ पे इस मैच को क्लोज करेंगे, वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के गेम के हवाले से बात करते हैं। फ़खर ज़बान के लिए आज क्या कहेंगे और बाबर के लिए क्या? फ़खर और बाबर के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये पाकिस्तान के बहुत शानदार प्लेयर हैं। क्या बात। और जो उन्होंने आज किया है, बस अल्लाह करे कि अल्लाह इनको हिम्मत दे, ये अगले आने वाले मैचों में भी हमें इसी तरह खुशियाँ दे, क्योंकि हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे ये 2 बड़े प्लेयर जो शानदार प्लेयर हैं, ये हमें अल्लाह करे कि ये हमें उस जगह पे लेके जाएं, फाइनल में लेके जाएं, फाइनल जिताएं, ताकि हम जो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं वो ये हमें प्रोवाइड, वो हमें मुयस्सर हो। जी वाह भाई। मैंने शुरू में भी ये बात की थी कि पहले 3 में से जब कोई 2 लोग स्कोर करेंगे तो पाकिस्तान टीम मैच जीतेगी, और आज वो फ़खर और बाबर ने दोनों ने जब इकट्ठे खड़े हुए हैं तो उन्होंने वो कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अनडाउटेडली बाबर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, परफॉर्मर, और हर जगह उसने परफॉर्म किया, एंड आई वुड लव टू सी हिम कि वो अगले मैच में भी परफॉर्म करे जिस तरीके से उसने किया। आज शायद 50 ओवर का मैच होता तो वो 100 भी कर जाता, जिस तरीके से वो खेल रहा था। मैच्योर इनिंग्स थी उसकी। और फ़खर हमेशा से वन ऑफ माई फेवरेट्स, इम्पैक्ट प्लेयर, हमेशा उसकी बात की है कि जब शीदा चल गया तो नहीं, वो सीधा नहीं है, लेकिन ये तो मजाक की बात है, लेकिन फ़खर में ये क्वालिटी है कि ही इज समबडी जो मैच को एक साइड पे लगा देता है, एंड आई विश देम बोथ ऑल द वेरी बेस्ट। ये 2 बहुत क्रूशियल बैट्समैन हैं हमारे, जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आने वाले मैच में भी, और इंशाल्लाह यही 2 लोग ऐसे होंगे, और सारे ही हैं वैसे तो, दो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इन 2 पे हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है कि ये हम लोगों को सेमीफाइनल्स तक लेके जाएंगे। यही उम्मीद है कि फ़खर ज़मान की जो ये फॉर्म हमने लास्ट 2 मैचेस में देखी है ये कंटिन्यू रहे आगे भी, और इसी रिदम के साथ पाकिस्तान जो है वो होपफुली ऑल थिंग्स गो आवर वे नॉकआउट स्टेज में भी सर्व करेगी। यहाँ पे जी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्हेन वी कम बैक
From the break, we will talk about Australia versus England. The defending champions are out of the World Cup. More on that after the break. Game on है. Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. We've certainly spoken enough about Pakistan. Well, वैसे अगर आज रात की बात की जाए तो पाकिस्तान की हम जितनी भी बात करते हैं शायद कम ही लगती, लेकिन अब जरा दूसरी जानिब बढ़ते हैं because it was a super Saturday double-header, ladies and gentlemen, where it was Australia and England on the other hand coming together, taking a good look at the match summary to make you feel as if you're back in the game as well, ladies and gentlemen, looking at England, winning the toss and then choosing to field first as well, and Australia making sure that they're going to contribute. Unfortunately, Head and Warner couldn't contribute that much, but it was Stephen Smith rising onto the occasion with 44 of 52 deliveries, and there was Labuschagne. That was the kind of partnership that we wanted to look in between, and then it was Green and Stoinis coming together. But not just that, if we are to kind of move on towards England, it was David Malan, Ben Stokes and Moeen Ali rising to the occasion. Unfortunately, couldn't do that. If you are to look at the bowling side, Australia, Zampa, wonderful overs, 10 overs, not just that, 21 runs, 3 wickets at an economy of 2.10. England unfortunately losing, Australia winning by 33 runs. Moving on towards the points table, is there Roha? Is there anything which we see as a change today? I think the only change जो fans इसकी तरफ देखेंगे वो है England. If you look at them, they are pretty much done and dusted as far as this World Cup goes. They are now formally out of the tournament. But Australia with this win are looking even more secure on that points table. अब 10 points के साथ वो नंबर 3 पे आ चुके हैं. Of course, we know कि India and South Africa have qualified, but now it's Australia who are looking to cement that spot and make it to the knockout game. But BK, today's batting Australia की अगर हम बात करें, of course स्मिथ की भी हमने बात की, of course उनका नंबर बार-बार 3-4 अब ट्रैविस हेड की आने की वजह से और मार्श के एब्सेंस की वजह से थोड़ा सा अब एक स्टेबिलिटी जो है वो ये नज़र आई है कि अब 4 पे लबुशेन खेल रहे हैं. आज उनकी इनिंग्स के बारे में आप क्या कहेंगे? इट लुक्ड लाइक दैट पार्टनरशिप दैट ही स्ट्रक विद स्टीवन स्मिथ सॉर्ट ऑफ गेव ऑस्ट्रेलिया द मोमेंटम. जो पावर प्ले में उनके 2 विकेट्स गिरी थी उसके बाद स्टेबलाइज कर दिया था काफ़ी. देखिए, इन दोनों को पहले भी बात हुई, इन दोनों को ओवर ज़्यादा चाहिए. इनको चाहिए कि ऊपर से जल्दी आउट हो जाएं ताकि ये अपनी इनिंग्स में मतलब थोड़ा से ऊपर से टाइम लें. लिविंगस्टन को भी बॉलिंग करा दी, मोइन अली को भी करा दी, सबको करा दी, तब आदिल रशीद को लेके आए. और एक तरफ ये कहते हैं कि आदिल रशीद हमारा स्ट्राइक बॉलर है, एक तरफ उसको बॉलिंग बिल्कुल एंड में कराते हैं. लिविंगस्टन पे बहुत इनको भरोसा है और वो हर रोज़ इनको धोखा देता है. लेग स्पिन ऑफ स्पिन करता है, वो बात ठीक है, बट जो आपका रेगुलर स्पिनर है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड और आपका नंबर 1 स्पिनर है, उसको आप गेम में अंदर ला ही नहीं रहे. जब इनकी पार्टनरशिप बन रही थी तब तो इसको बॉलिंग ही नहीं दी गई. जब ये बिल्कुल सेट हो गए फिर आदिल रशीद को लेके आए, तो वो ज़ाहिर है इंग्लैंड की काफ़ी चीज़ें नहीं चल रही, लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग टैक्टिक थी. लेकिन आपने बात की बैटिंग, मैच तो सारा आज जिस तरह फ़खर का मैच था, इधर जैम्पा का मैच था. रन्स, विकटें, कैच. He was all over the park. But राशिद सर, आपकी तरफ आऊँगे. ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा बताएं आपका ओपिनियन, क्योंकि स्मिथ ने भी आज रन्स किए हैं और लबुशेन ने भी अच्छी पार्टनरशिप लगाई उनके साथ. आज थोड़ा डिफरेंट खेले ऑस्ट्रेलियंस, जैसे लबुशेन की बात की है, स्मिथ की ये 2 पॉइंट्स वाला मैच होता है ना कि थोड़ा सेफ भी खेलना है. जिस तरह से कल हॉलैंड टीम का बताया था बाजिद ने फुटबॉल का जी, तो डिफेंसिव एंड अटैक दोनों साथ होता है. तो ये आज जो खेले गेम टोटल डिफरेंट था. हालांकि बहुत सारे अटैकिंग प्लेयर्स इनके पास मौजूद थे, वो चल नहीं सके, या 2 ऐसे प्लेयर्स चले जिनको रखा हुआ है. वैसे तो इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, 44 एक ने किए, 71 के, लेकिन मैच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये वाला, क्योंकि ये अगर नहीं निकालते तो शायद ऑस्ट्रेलिया ये मैच नहीं जीत सकता था. उनका फोकस मैच बाई मैच विन का है. ये एक अप्रोच चेंज लगी. दूसरा मैच जो खेले थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो डिफरेंट अप्रोच से खेले थे. इनको अटैक किया था, जिस बॉलिंग को ये मार सकते हैं वहीं से ही शुरू हो जाते हैं, जिस तरह से हेड ऑफ वॉर्नर. यहाँ पे आज थोड़ा सा इन्होंने अपने गेम को चेंज करके थोड़ा डीप गए अपनी बैटिंग में, क्योंकि बैटिंग में आज मैक्सवेल भी नहीं थे जिसकी वजह से इनको नुकसान हो सकता था.
लेकिन जो टोटल डाल दिया था ये इंग्लैंड जीत सकता था। उसके बाद जिस तरह मिचेल स्टार्क वो नए बॉल पे कोशिश करते हैं, स्ट्राइक बॉलर हैं, नए बॉल पे वो आते हैं और फिर आज भी 2 उन्होंने विकेट लिए और उससे गेम चेंज हो जाता है। अगर आते ही साथ आउट करते हैं, पहले दूसरे ओवर में 2 विकेटें मिल जाएं आपको और 300 चेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बीच में जैम्पा, ये 2 ऐसे बॉलर, शुरू में ये 2 आउट करते हैं, 3-4 वो नीचे आउट कर देते हैं। तो बीच का गेम चलाने के लिए वो हैजलवुड है और कमिंग्स हैं, वो भी ठीक ठाक बॉलर्स हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में लग रहा है अभी आज के मैच के ऑस्ट्रेलिया बहुत फोकस था कि हमें ये मैच किस तरह से जीतना है। बिल्कुल, कुछ टीम ये बायलैटरल में ऐसा नहीं खेलते, लेकिन आज जो खेला डिफरेंट ऑस्ट्रेलिया खेली है। बिल्कुल हफीज, यहाँ पे थोड़ी बहुत इंजरीज जो उनकी हुई है, मार्श नहीं खेले आज का मैच, मैक्सवेल इंजर्ड हैं, कैमरन ग्रीन को आज मौका मिला है, उन्होंने भी रन्स किए हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी टीम फॉर्म में होती है तो जो आपके बेंच पे बैठे होते हैं प्लेयर्स, उनके पास उनको भी एक इंस्पिरेशन होती है कि जो मौका उनको दिया गया है उस पर स्कोर करे। और आज उनकी तरफ से ग्रीन ने, जिनके बारे में काफ़ी बात हो रही थी वेदर और नॉट ही शुड बी इन द साइड, उनकी जगह बनती है कि नहीं, कैसा देखते हैं आज इनकी इनिंग्स को? ये देखिए, ज़रूरत पे आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले और आप परफॉर्म करें तो आप खुद बहुत खुश होते हैं और आपकी टीम को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। वो मुझे लगता है कि वो जब वो 290 के पास गया, 280 जितना इनका टारगेट था, जब ये उसके पास गए हैं तो उनकी बैटिंग के अंदर फिर से वो जो डेवल है उसने उनको दोबारा से हाउंड किया। आप देखें कि एट सर्टेन स्टेज मुझे लगा कि शायद आज को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, जैसे मलान खेल रहे थे, लेकिन जो मलान ने शॉट खेली है 50 करने के बाद, इट टेल्स यू द स्टोरी ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट एट द मोमेंट कि वो कोई भी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई चाह ही नहीं रहा कि यार अगर मेरा आज दिन आ गया। हमें ना बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा कोच हमेशा हमें एक बात बताता है कि जब आपका दिन हो ना तो उसको मैक्सिमाइज करो। वो ये कहता है कि जब आपका जोन आ जाए ना, जब आप पे मैच पड़ जाए तो आपने उस मैच को अपने ऊपर रख के मैच जितवाना है जी। तो ये चीज़ तो आप बचपन से सीखते हैं। तो जब आपने 50 रन कर दिए और वो आपको सारी फाउंडेशन और चीज़ें आपने कर दी, फिर वो जो शॉट है डेविड मलान का, दैट टेकन द गेम अवे फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि उन्हें पता था कि बटलर ऑलरेडी बेचारा फंसा हुआ है। तो यानी एक फंसे हुए बंदे को आप खुद फंसा रहे हैं। अगर आपके पास आ गई है एक पोजीशन कि आप 50 को 100 की तरफ लेके जा सकते हैं, तो आपने क्यों ऐसी गलत शॉट मारी? एंड डेविड मलान, वी हैव सीन सो मच ऑफ हिम इन T20 क्रिकेट। आज फिर वो जिस शॉट की आप बात करें, मे बी ही वांटेड टू चैनल दैट T20 स्किल सेट। अभी तो वनडे तो बहुत बुरी तरह वनडे क्रिकेट खेले हैं। मैं जो बात हकीकत है कि किसी डिफेंडिंग चैंपियन को इतना नीचे गिरते हुए अगले टूर्नामेंट में मैंने शायद नहीं देखा, और इस पे शायद पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन ये देखें, ये रीजंस आपको बता रहा हूँ कि जैसे बीके ने पॉइंट आउट किया कि आदिल रशीद को सबसे एंड पे लेके आना, ये समझ से बाला तर है, जबकि वो आपका मेन स्ट्राइकर है। ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड जैम्पा को हर क्रूशल मौके के ऊपर बॉलिंग करवाते हैं, जहां पे उनको लगता है वो नीड विकेट, वो सारा बॉल प्रेजेंट करते हैं जैम्पा के आगे जी। तो आप अपने विकेट टेकर को सबसे एंड पे लेके आ रहे हैं। उसके बाद जब आपके पास एक जोन आया कि आप मैच जितवा सकते हैं, डेविड मलान की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसको छोड़ के आ जाते हैं। और फिर कप्तान आता है, वो तो पहले ही फंसा हुआ। हमने सबको पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे मोस्ट आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है वो बटलर है, और वो नजर आ रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद जो स्टोक्स ने बारी ली, उसने सारी चीजें ली। जब वो स्टोक्स आउट होकर बाहर गया ना, जब उसने रस्सा क्रॉस किया है, अगर वो विजुअल आप दोबारा देखें, टेल्स यू द स्टोरी ऑफ अ टीम एनवायरनमेंट के वो बिल्कुल दिल छोड़ चुके हुए हैं। हमारे लिए इनकरेजिंग है एज ए पाकिस्तानी। हम तो चाहेंगे इसी जोन में रह के आप अगला मैच भी खेलो, ताकि हम लोग वन साइडेड मैच आपसे या जो हमें इक्वेशन चाहिए हम उसको हासिल करें। लेकिन एज ए फैन ऑफ क्रिकेट, द वे इंग्लैंड प्लेड एट द मोमेंट, वो very disappointing, and I'm sure they're also disappointed in themselves. But वहाब क्विकली, बिकॉज आपने इतनी बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के बॉलिंग को आज ब्रेक डाउन किया, क्विकली अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग जिस तरह आज हमने देखा, उनकी जो डिसीजंस लिए गए बटलर की तरफ से इन यूटिलाइजिंग द बॉलर्स और मे बी परहैप्स अंडर यूटिलाइजिंग और रॉन्गफुली यूटिलाइजिंग, प्लीज इफ यू कुड गिव अस योर टेक ऑन द बॉलिंग। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कप्तानी है ना, वो पूरे इस टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है इंग्लैंड की टीम की। बिकॉज एज अ कैप्टन मुझे ऐसी फील आई है कि ना तो बटलर को ये पता है कि मेरे प्लेइंग 11 क्या है, ना उनको ये पता है कि मेरे गो टू बॉलर्स कौन है, क्योंकि हर टीम में कोई ना कोई गो टू बॉलर होता है कप्तान का, जिसके पास उसको चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालीफाई करना है। ठीक है। और उसके बाद आदिल रशीद, अगर आज की विकेट पे आप देखें तो जैम्पा अगर इतनी मुश्किल डाल रहा था जबकि इतनी ड्यू थी, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आदिल रशीद को इतना लेट लेके आना वो समझ से बाहर था।
जब आपने 4 आउट कर लिए थे ऊपर से, तो फिर आपको आपका मेन स्ट्राइक बॉलर जो है उसने आदिल नहीं आपको 2 आउट किए, तो उसको आप लंबा स्पेल करवा देना कि वो आपको विकेट लेके दे। फिर अनफॉर्चुनेट है दोबारा से कि जिस तरह हफीज़ भाई ने कहा कि आप आउट कर लेते हैं पैचेस में और उसके बाद आप 40 रन की पार्टनरशिप करवा देते हैं स्टार्क और जैम्पा की, और अगर आपने फील्डर ऊपर लिए हुए हैं और आप उनसे पीछे शॉर्ट बॉलिंग पे ही उनसे लॉन्ग ऑन पे मार खाई जा रहे हैं, सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इंग्लैंड की बॉलिंग नहीं, इंग्लैंड की जो पूरी है, इन लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव टू सिट टुगेदर और उन लोगों को इस बारे में बहुत डिस्कस करना पड़ेगा कि उनके बेसिकली बॉलर्स हैं कौन से, वनडे के कौन से और T20 के कौन से। मेरे ख्याल है वर्ल्ड कप के बाद डिस्कशन करने तो बेहतर जो आखिरी मैच रहेगा ना, ये ऐसे ही खिलवा ये तो ऐसे ही खेलें। मैं तो चाहता हूँ ये ऐसे ही खेलें ताकि पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान जो है वो जीत जाए। लेकिन इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, आप यकीन करें यू नेवर नो कि पाकिस्तान ने वन साइडेड हरा दे, क्योंकि ना इस वक्त उनकी बैटिंग क्लिक करी ना उनकी बॉलिंग। आपके मुंह में घी शक्कर। हम जरा एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे तो एडम जम्पा के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बाजिल भाई फिलॉसफी, थ्योरी, इन सब के ऊपर काफी रीडिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इनसे बात करनी बड़ी जरूरी है। गेम ऑन है। Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you very much for staying tuned. और मैं जरा बाज़ी भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाज़ी भाई, अब जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अभी हमने जब पाकिस्तान के हवाले से बात की, स्पिनर्स की बात की, वहाब भाई ने भी ये बात इस्टेब्लिश की कि यार नवाज को खिला लें, एक फुल टाइम हमें स्पिनर चाहिए। जब अब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के लिए खेलने के लिए आई, तब हमने कहा कि यार ये एक स्पिनर के साथ सर्वाइव कैसे करेंगे, और हमने ऑस्ट्रेलिया को एक स्पिनर के साथ, जिसका इतना पिवटल रोल रहा, विकेट्स लेकर भी वो देते रहे, वक्तन फवक्तन हमने उनका इम्पैक्ट देखा। अब मैं ये चाहता हूं कि आप एक राइट मवाजना जरूर करें यहाँ पर, ड्रॉ द लाइन कि क्यों जैम्पा इतने इम्पैक्टफुल है, रादर देन जब अपने पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि 3 स्पिनर्स हमने टेस्ट एंड ट्राई कर लिए, वो इम्पैक्ट नहीं नजर आता। जैम्पा का इम्पैक्ट पहले 2 मैचेस में शायद नहीं नजर आया, लेकिन उसके बाद वो बढ़ते ही चले गए। देखिए, ये तो मुवाजना क्या करें, ये तो इंडिया में जब तक आप स्टम्प्स में बॉलिंग नहीं करोगे तब तक कोई भी फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, काफ़ी सालों से ये इनका वनडे का मेन बॉलर है, और शुरू के मैचेस में ऐसे लग रहा था कि इसको थोड़ी से इंजरी भी इश्यूज थे, लेकिन ये लग रहा था क्योंकि इसका बॉल गिर नहीं रहा था, ये स्टंप से बाहर जा रहा था, जो जैम्पा नहीं करता होता। आप जो जैम्पा से एसोसिएट करते हैं, अगर जैम्पा को आप दिमाग में उसकी बॉलिंग एसोसिएट करें तो आप एसोसिएट करते हैं LBW या बोल्ड, क्योंकि वो स्टंप्स में बॉल करता है। तो जब गेंद गीला भी हो जाता है तो जैम्पा को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जैम्पा लेग स्पिन पे डिपेंड नहीं कर रहा, जैम्पा कोई बड़ी टर्न पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है कि मैं शॉर्ट ऑफ लेंथ या थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ बॉल करूंगा और वो स्किड करके विकेटों में जाएगा। आज भी बिल्कुल उसने वैसे की है, जहाँ उसको लगा कि मैं अब हावी हो गया हूँ, जैसे मोइन अली को उसने आउट किया, मैं हावी हो गया हूँ, तो उसने स्लाइटली थोड़ा सा स्लो बॉल गुगली किया था, वो ये लेग ब्रेक नहीं किया कि बॉल अंदर आए, गुगली किया था, लेकिन थोड़ा सा स्लो किया। उसके अलावा सारे स्पेल में उसने बॉल स्टंप टू स्टंप किया, और जिसमें मतलब ऐसी ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में बुरी कंडीशंस मिली, बैटिंग भी उन्होंने डिफिकल्ट कंडीशंस में की और बॉलिंग भी, लेकिन फिर भी वो उसको मैनेज करके जैम्पा की वजह से। अब जो पिक है जो आपने बात की है उसमें आपने ये कहा कि जैम्पा के अगर हम करियर को देखते हैं तो उनका वनडे का मेन स्पिनर है। मैं जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। हमारा पाकिस्तान में सर आप किसका नाम लेंगे जब हम कहेंगे कि वनडे में हमारा मेन जिसके ऊपर हम रिलाई करते हैं स्पिनर ही है? आज कौन सा स्पिनर खेला हमारा तो इफ्तिखार ही खेलता है। खुद जवाब दे दिए तो मैं क्या जवाब दूंगा? 10 ओवर कर रहे हैं इफ्तिखार, आगा सलमान 2 कर रहे हैं, तो जो मैं एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं ये है कि हमारा अभी तक वनडे का हमें पता ही नहीं है कि स्पिनर कौन है। नहीं पता है, ऐसा कौन है? शादाब है हमारा बॉलर तो है, लेकिन उसको किस तरह से खिलाना है। अब जगह एक ही बन रही है कि सलमान अली आगा की जगह, बिल्कुल उससे बेहतर बॉलिंग कर सकते हैं। हमें बॉलिंग का इशू है, ऐसा नहीं है। तो शादाब अगर नंबर 6 पे अगर बॉलर सेलेक्ट होंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे। 4 ओवर 5 ओवर का सोचेंगे तो वो उनके पास एडिड प्रेशर है ना बॉलिंग का। लेग स्पिनर जब कॉन्फिडेंस नहीं होता उसके पास, फिर आप उसको विकेट पिच भी नज़र नहीं आ रही होती। बहुत सारे केसेस क्लब लेवल से लेके फर्स्ट क्लास में या दूसरे मैचेस में नज़र आते हैं जहाँ पे लेग स्पिनर को लाइन नज़र नहीं आ रही। और ये तो बहुत बड़ा इवेंट है यार, वर्ल्ड कप है, तो सारा प्रेशर पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया का किसके ऊपर है? शादाब के ऊपर है, क्योंकि वो
उससे उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि वही खेलते हुए आ रहे हैं। तो उसको अब किस तरह से हमें, अब ये टीम मैनेजमेंट है ऊपर की, वो किस तरह से वो खिला देते हैं, ये नहीं पता कि ये अंडर प्रेशर है, इसका प्रेशर कैसे तोड़ना है। True. या तो मिडिल में बैटिंग करा के आप कर सकते थे, लेकिन क्या आप बिल्कुल ही, जैसे हफीज़ ने कहा, बाहर कर दिया, कॉन्फिडेंस और शेक हो गया। फिर उसामा को रखा था सेकंड, वो भी बाहर है। अब आपके पास नवाज से, वो भी बाहर है। तो एक ही सोल्यूशन जो नज़र आ रहा है वो ये कि शादाब को ऊपर लेके आएँ, उनसे चंद ओवर करवाएं तो बेहतर हो सकता है। अदरवाइज़ कोई और है नहीं, या तो किसी को अनफिट करके अबरार का चांस ले लें। जी, अनफिट तो वो मेरे ख्याल है शादाब बेचारे शायद नहीं, किसी का ऐसे नहीं बोल रहा मैं, लेकिन ये है कि चांस अभी इन 15 में बनता है वो शादाब का ही बनता है। सही। लेकिन देखें, अगर आप ये बात करें, आज मुश्किल तरीन कंडीशन मिली बॉलिंग की। जी, जैम्पा ने गीले बॉल के साथ भी राइट एरिया में हिट किया। क्या मतलब इसका कि उसकी रिदमिक मोमेंट, उसके जो मसल मेमोरी इतनी ज़्यादा सेट हुई हुई है कि उसको गीले बॉल होने के बावजूद वो जो एरिया वो हिट कर रहा है। देखें, जो आप बात करें ना हमारे स्पिनर्स की, उनका मसला टेक्निकल इशू आए हुए हैं, और वो शादाब के साथ सबसे पहले है, उसामा के साथ भी चल रहा है। लेकिन आप देखें कि उसामा पिछले 2 मैचों में जब वो सब के तौर पर आए, जब कंकशन हुई शादाब को, तब उन्होंने 3 आउट किए, अगले मैच में 2 आउट किए। यानी जो भी वो, मैं कहता हूँ 6 की एवरेज से स्कोर खा रहा है, खा ले, लेकिन उसने आपके लिए 5 आउट करके दिए हैं मिडिल ऑफ द इनिंग्स में। आज वो कैसे बाहर होता है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब आप अपने स्पिनर को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, स्पिनर का दिल जब तक बड़ा नहीं होगा, जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाएगा, वो नहीं खेल पाएगा। इस वक्त तीनों स्पिनर को, वो जो मैं बात करूँ कि बिल्कुल साइड कॉर्नर कर दिया गया, और आप ये सोचें कि वो तीनों जब फेलियर के तौर पर ड्रॉप्ड होने के बाद डग आउट में बैठे हुए हैं। तो इस टूर्नामेंट में अगर आपने आगे जाना है, पाकिस्तान ने अगर आगे तक जाना है, तो स्पिनर ने हर हाल में कंट्रीब्यूट करना है। एग्जैक्टली। और अगर हमने इस मैराथन ट्रांसमिशन में आगे जाना है तो एक गुगली ब्रेक के बाद वापस आना है। खवातीन और ज़ाटों को एनीवे विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। जी, वेलकम बैक टू गेम ऑन है। अभी हमने बात की पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की, फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की, चारों टीम्स और दोनों मैचेस के बारे में बात की हमने। वी टुक अ लुक एट द की परफॉर्मेंसेज एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रैटेजीज होंगी। ऑफ कोर्स इंग्लैंड विल नॉट हैव मच टू लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज उनका जो वर्ल्ड कप का जो उनकी रन थी इस वर्ल्ड कप की, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। बट पाकिस्तान स्टिल आर वेरी मच इन द गेम, अनदर डे दे लिव अनदर डे, और उस सब के ऊपर हम लोगों ने बात की अपने एपिसोड में। लेकिन अब टाइम है जी कि हम आपको बताएं कल का मैच किसके बीच में है। शहजाद, इट्स गोइंग टू बी ईडन गार्डन्स once again, it's going to be Kolkata. Every day we are looking at different venues, and tomorrow we go back to Eden Gardens, Kolkata. It is going to be another clash of the Titans, India versus South Africa, two teams that have already qualified to the knockouts. और यहाँ पे वहाँ दोनों टीम्स तो क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन कल का मैच थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। आप आई एम श्योर कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे कि क्या सिग्निफिकेंस है वैसे कल के मैच की। ऑफ द रिकॉर्ड भी आपने एक प्रेडिक्शन दी थी, अगर आप देना चाहते तो जरूर दे दें। ऑफ द रिकॉर्ड मेरी प्रेडिक्शन तो है, आई होप कि ऐसा ना हो, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि कल का मैच जो है वो साउथ अफ्रीका जीतेगी। ओके। और उसके सिग्निफिकेंस जो है वो आगे, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कि पाकिस्तान जो है वो अगर इंशाल्लाह इंग्लैंड से जीत जाते हैं हम, तो इफ़ वी क्वालिफाई तो पाकिस्तान विल बी नंबर 4 इन द ग्रुप, और वन हैज़ टू प्ले नंबर 4। कल का मैच जीत के नंबर 1 ऑन द पॉइंट्स टेबल विल प्ले नंबर 4 ऑन द पॉइंट्स तो टेबल। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इंडिया नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान को फेस करे, इट्स नॉट अबाउट के वो अच्छा नहीं खेल रहे, इट्स नॉट अबाउट के वो, बट देयर इज ऑलवेज एन एडिशनल प्रेशर ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम। सो आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि कल का मैच साउथ अफ्रीका की फेवर में जाएगा। मे बी क्या कि तुसी अपने आप को सेव कर लिया, जरूरी है। मे बी कहना जरूरी होता है। मे बी हफीज भाई, कोलकाता ईडन गार्डन नंबर 1 वर्सेस नंबर 2। यार मैच तो बहुत शानदार है, बड़ा मैच है। मुझे लगता है इंडिया ही फेवरेट होगा। इंडिया ही फेवरेट होगा। साउथ अफ्रीका भी
लेकिन जब आप कलकत्ता में खेल रहे हैं इंडिया में, और इंडिया की जो इस वक्त की फॉर्म है, उनके बॉलर्स की जो फॉर्म लगी हुई है, बैट्समैन पहले से हमेशा से अच्छा करते रहे हैं, तो अभी तक वो सिर्फ नॉकआउट स्टेज के ऊपर मेरा शायद कोई दिमाग बदले तो बदले अभी लेकिन अभी नहीं। जी राज भाई नहीं, मैं तो स्ट्रेट इंडिया, लेकिन वहाब ने ज़रा हिला दिया, मैं शेक ही कर दिया एक ही कर दिया, लेकिन इंडिया। इंडिया जी। बाजिल भाई, एबी डिविलियर्स ये कहते हैं, एबी डिविलियर्स कहते हैं कि हो सकता है, उन्होंने जो प्रेडिक्शन दी है उनके मुताबिक, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल सही कि prediction। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे हाँ, साउथ और पाकिस्तान- इंडिया और पाकिस्तान का नॉकआउट स्टेज में मैच होगा, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो आगे पहुंच जाएगा, ये कहते हैं। क्या जैसे बात वाम है। भाई ने कहा वैसे। क्या बात है, डिविलियर्स की सही, उसको कोई टिप आई होगी, सही कह रहा है वो। टिप आई होगी। लेकिन कल क्या जो मैच, मतलब ईडन गार्डन्स हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, मुकाबला है टू जाइंट्स। बेस्ट बैटिंग साइड्स, प्लस मैं ये कहूँगा कि इंडिया बेस्ट बॉलिंग साइड, कंप्लीट बॉलिंग साइड, लेकिन इंडिया की बैटिंग का मुकाबला है, और मेरे ख्याल इस टूर्नामेंट की बेस्ट फास्ट बॉलिंग साइड से, तो बहुत 3-4 इसमें 2-3 मैचअप्स हैं। फास्ट बॉलिंग मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका की इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी रही, सबसे पोटेंट फास्ट बॉलिंग उनकी है, प्लस जो बैटिंग है दोनों एक जैसी करते हैं, एज इन वो भी बिल्ड करते हैं और फिर अटैक करते हैं, इंडिया भी बिल्ड करता है, लेकिन इंडिया को एडेड एडवांटेज ये है कि वो चेस भी कर लेते हैं और सारा कुछ कर सेट लेते भी कर लेते हैं। अभी तक साउथ अफ्रीका चेस में ज़रा शेकी है। एग्जैक्टली, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, इंशाल्लाह सुबह हम इस हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस होगा, स्ट्रेंथ वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। लेकिन अब बढ़ते जे डॉट आंसर ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे हमने सुबह में पूछा था, अब आंसर ऑफ द डे की जानिब बढ़ते। राजीव भाई, मतलब मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि हम सवाल पूछ के जाते हैं, जवाब आता है, पिछले 3 कंसेक्यूटिव डेज से जो विनर है हमारे, वो हमारी प्यारी बहनें हैं, खवातीन हैं, जो बेस्ट अंदाजे लगा रही है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने आज मेरी बात सुन ली थी, तो मेरा ख्याल में उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सो आज की हमारी जो जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था, हु इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट विकेट टेकर, दैट सर्टेनली हैपेंस टू बी, अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आप बात करते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, दूसरी जानिब बात करते हैं वो, बट दैट वाजंट रियली इंपैक्टफुल एज वेल। सो हमारी जो विनर है वो आयशा है। आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जे डॉट की जानिब से रूलर जो है वो आपको तोहफे में दिया जाता है। सो इंशाल्लाह इट विल बी ये बहुत पोस्टेड टू यू। इंपॉर्टेंट घोड़ा यार है ना, जी, ये बड़ा बेहतरीन घोड़ा है जी, काम आ रहा है। ये घोड़ा है, लेकिन इस डब्बे के अंदर इसकी पिछली टांगे नहीं है। कंग्रेचुलेशन अगली तो आयशा, है, आपको it's a बहुत great मुबारक perfume। हो, और आप सब इसी तरह हमारा शो देखते रहें और एंगेज करते रहें विद द शो, अपने आंसर्स भेजते रहें। आई थिंक गर्ल्स हैव अ वेरी गुड Yeah. ग्रिप ऑन क्रिकेट, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट वी हैव गर्ल्स विनिंग दिस राउंड बैक टू बैक एपिसोड्स में। बट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, वी विल see you all tomorrow inshallah for the pre-match show. It is going to be a big match. आज ही होगा। दो टीम्स जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं फॉर द नॉकआउट्स, अब देखते हैं कि इन दो टीम्स के जो एक दूसरे के खिलाफ क्या बेस्ट एफर्ट्स होते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स सिमिलर टीम्स बैटिंग वाइज नजर जरूर आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। वी विल बी बैक इन द मॉर्निंग फॉर ऑल द प्री मैच एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय द लाइव एक्शन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड डू ट्यून इन द मॉर्निंग। गेम ऑन। गेम ऑन है।